આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ પ્રસ્તુત કરે છે સમાચાર દર્પણ. આજના અંકમાં સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા વડોદરામાં આયોજિત યુવા અભ્યુદય શિબિરને વિડીયો કોન્ફરન્સિંગથી પ્રધાનમંત્રીનું સંબોધન, ગાંધીનગરમાં વડનગરની આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદમાં ભાગ લેવા આવેલા 70થી વધુ પ્રતિનિધિઓએ વડનગરની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી, કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરની ગુજરાતની મુલાકાત, એમએસએમઈ સેક્ટરમાં ડિજિટાઇઝેશન ઉપર મૂકેલો ભાર અને ચિલોડા ખાતે સ્વચ્છતા અભિયાનનો શુભારંભ કરાવતા રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રત. વડોદરામાં સ્વામિનારાયણના 2 મંદિરો દ્વારા યુવા અભ્યુદય શિબિર યોજાઈ ગઈ. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત આયોજિત આ યુવા અભ્યુદય શિબિરને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी आ रीते संबोधन कर्યું. आज मुझे जुड़ने का अवसर मिले, ये अपने आप में संतोष का, खुशी का अवसर. इस शिविर की जो रूपरेखा, जो उद्देश्य है और जो प्रभाव है, वो आप सभी संतों की उपस्थितियों में और निखर जाएगा. हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है कि किसी भी समाज का निर्माण समाज की हर पीढ़ी में निरंतर चरित्र निर्माण जो है, उसकी सभ्यता, उसकी परंपरा, उसके आचार विचार व्यवहार एक प्रकार से हमारी सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि से होता है. ગાંધીનગરમાં મહાત્મા મંદિર ખાતે વડનગરની આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદ યોજાઈ ગઈ, જેમાં દેશ વિદેશના ઇતિહાસકારો, પુરાતત્વવિદો અને નિષ્ણાતોએ ભાગ લીધો. આ પરિષદમાં ભાગ લેવા આવેલા પ્રતિનિધિઓએ બાદમાં વડનગરની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી હતી. કેટલાક પ્રતિનિધિઓએ આ મુલાકાત બાદ તેમના પ્રતિભાવો આ રીતે આપ્યા. My name is Nick Merriman. I'm Chief Executive of the Horniman Museum and Gardens, a museum in southeast London. I've been to India many times, but this is my first time in Gujarat. It's been a great pleasure to be here. And I've been invited to speak at the international conference on archaeological museums and site interpretation. I think the international conference has been a great opportunity to bring together interdisciplinary experts to think about the future of Vadnagar as an important heritage site. And the trip to Vadnagar today has shown to me what an amazingly impressive site it is, and the tremendous potential of the museum and the site as a whole in terms of becoming a major addition to India's heritage attractions. And I'm very pleased with the government of Gujarat, with the government of India, of course, in organising such a fantastic conference. It's been a huge effort, and I must say it's been extremely well organised, and I've been very well looked after. It's a beautiful place, and village people are very. I mean, it's not village, but town people are very friendly, and so much happening, like wedding happening, and people chilling out outside, and so vibrant, and so yeah, I really enjoy staying here. Not just to see, archaeological monuments, people, and the activities, and everything, and it's so wonderful. This is Suman Jain, head of the department Ancient Indian History, Culture and Archaeology, BHU वाराणसी से. यहाँ 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ वडनगर का, ये बहुत ही हम लोगों के लिए मेमोरेबल है. और वडनगर के बारे में जब मेरे पास सर्कुलर यहाँ से पहुँचा, तो ये मेरे लिए बिल्कुल एक नया प्लेस था, एक नई बात थी जिसके बारे में ना तो हम जब बहुत जानते थे और न ही हमारे डिपार्टमेंट के लोग जानते थे. यहाँ आने के कार्यक्रम जब बना तो धीरे धीरे लोग जुड़े, और हम 27 लोगों का एक दल यहाँ आया, एक डेलीगेट आया BHU का. 3 दिन हम लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, और बहुत अच्छी जानकारी यहाँ के बारे में मिली मुझे कि वडनगर एक ऐसा ऐतिहासिक प्लेस है जिसकी कंटिन्यूटी फ्रॉम 2nd सेंचुरी BC से या उसके अर्लीस्ट भी हम जा सकते
कहते हैं, वहां से लेकर के प्री मॉडर्न का भी कुछ लोग कहते हैं यहाँ प्रमाण मिल रहा है, तो प्री मॉडर्न से लेकर के और मुगल काल तक एक जो कल्चरल सीक्वेंस है वो पूरा मिलता चला जा रहा है। और एक ऐसा ये सेंटर है जहाँ सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, हिस्टोरिकल, आर्ट, आर्किटेक्चर सारे एविडेंसेस यहाँ एक साथ मौजूद है, यानी इतिहास के सारे पक्षों पर एक साथ यहाँ प्रकाश पड़ता है। मैं प्रोफेसर उषा रानी तिवारी संग्रहालय विज्ञान की प्रोफेसर हूँ और हमारे वीसी साहब सुधीर कुमार जैन हम लोग को यहाँ पर एक 27 लोगों के दल के साथ में आई हूँ, जिसमें मैं संग्रहालय विज्ञान विशेषज्ञ के रूप में मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। यहाँ आकर के 3 दिनों में जो हम लोगों ने अनुभव किया है, वडनगर के बारे में नाम तो अवश्य सुना था, लेकिन यहाँ आने पे मुझे पता चला विगत 3 दिनों के सेमिनार के दौरान कि गुजरात सरकार की और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स की जो यहाँ योजना है, लगभग 7 म्यूजियम्स बनाने की योजना है। और जिसमें पहला जो आज हम लोग ने वडनगर में अभी जाकर के जो साइट भी देखा, वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम बनाने की योजना है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वृहद योजना है। और उसका जो स्वरूप होगा, जैसा कि मुझे बात करने से यहाँ के अधिकारियों से पता चला कि लोग साइट भी देखेंगे और साइट को से एक्सकेवेट होकर के जो चीजें, जो खुदाई से जो चीजें मिली हुई हैं, उनको वहीं उसी स्थल पे रखा जाएगा, जिससे लोग वहाँ पे जाकर के एक उस आर्ट इफेक्ट्स के साथ एक साजिश का जो है अनुभव करेंगे। और साथ ही जो और भी म्यूजियम्स बनाने की योजना है, वो म्यूजियम एक ऐसी जगह है जो कि हमारे युवाओं को अपने अतीत से जोड़ता है। और ये जो संग्रहालय है, ये संग्रहालय न केवल आगे आने वाली पीढ़ियों को अतीत अपनी विरासत से परिचित कराते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में एक गौरवशाली परंपरा और अपने राष्ट्र के प्रति एक गौरव होने की अनुभूति भी देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शीतल राणा है, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हूँ। एज एन एसोसिएट प्रोफेसर वहाँ पर मैं कार्य करती हूँ। एक बहुत अलग सा और अच्छा अनुभव हुआ है यहाँ पर आकर, एंड मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ की सरकार का, वाडनगर के लोग जिनसे हमारी आज मुलाकात हुई ड्यूरिंग द विजिट। साइट विजिट किया हमने, हमें बहुत अच्छा लगा, एक बहुत ही सुखद अनुभव हुआ है, वेरी रिच लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ। કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી રાજીવ ચંદ્રશેખર ગુજરાતની 3 દિવસની મુલાકાતે આવી ગયા. વિવિધ યુનિવર્સિટીઓમાં તેમણે યુવા ઉદ્યોગ સાહસિકો સાથે અને સ્ટાર્ટઅપ સાથે વિચાર વિમર્શ કર્યો. મંત્રી શ્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરે મધ્યમ, લઘુ અને સૂક્ષ્મ એકમોને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર સ્પર્ધાત્મક બનવા માટે ડિજિટાઇઝેશન અપનાવવા આ રીતે ભાર મૂક્યો. मुझे एक एनकाउंटर या मौका मिला कि आज यहाँ पर स्टार्टअप्स के साथ उनके काम, उनका जो इनोवेशन, उनका जो मोटिवेशन को देखकर मैं बहुत ही एनकरेज्ड हूँ। और एक मौका भी मिला कि स्टूडेंट्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नया इंडिया का जो एक विजन है और उस विजन में युवाओं का जो रोल है और महत्व है और उनका जो इम्पोर्टेंट रोल है, ये आने वाले दिनों में, सालों में जो अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं देश के सामने, उनको रियलाइज करने में उनका कितना एक इम्पोर्टेंट रोल है और उनका मोटिवेशन से कैसे देश 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। एक तो वो, दूसरा एक ये बहुत क्लियर है कि गुजरात सरकार ने बहुत कुछ किया है यहाँ पर एक स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम का एनवायरनमेंट और पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने के लिए। और मैं ये भी कहने आया था कि भारत सरकार गुजरात सरकार के साथ मिलकर यहाँ का इकोसिस्टम को हम अगले लेवल तक पहुँचाएंगे और नए नए एरियाज रेंजिंग फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन टू ड्रोन टेक्नोलॉजीज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मशीन लर्निंग, इस सब एरियाज में हम पार्टनरशिप के एक मॉडल से यहाँ पर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे हमारे स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए। तो इस मैसेज को देने के लिए मैं यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी में आया हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे एक ऐसा मौका मिला और मैं बहुत ही उत्सुक भी हूँ और इंस्पायर्ड भी हूँ यहाँ के परफॉर्मेंस और इनोवेशन को विटनेस करके। ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ પંડિત દીનદયાળ એનર્જી યુનિવર્સિટી ખાતેના કાર્યક્રમમાં આ રીતે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કર્યું. જીટીયુ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, પીડીયુ, ખાસ કરીને આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ જે પ્રકારે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા માટે, સ્ટાર્ટઅપર્સ માટે
દિશા આપી રહ્યા છે ત્યારે એમની સાથે વાર્તાલાપ મળવાનું, સમજવાનું અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ખાસ ગુજરાતમાં આવ્યા છે ત્યારે એમનું સ્વાગત કરું છું. અને આપ સૌ પત્રકારો, અમારા સાથી મંત્રી માનનીય કુબેરભાઈ, અગ્ર સચિવ શ્રી હૈદરજી, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર કે સમગ્ર રાજ્યની અંદર સ્ટાર્ટઅપર્સ તરીકે 400થી પણ વધારે સ્ટાર્ટઅપર્સ ને 4000થી પણ વધારે જેમણે જોબ પણ આપી છે એવા યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર પણ હાજર છે. ત્યારે અહીંયા ખૂબ સુંદર રીતે વાર્તાલાપ પણ થયો. દેશની નીતિઓ, રાજ્યની નીતિઓ, આવનારા સમયમાં સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ પોલિસી 2.0 એમનો મેક્સિમમ ઉપયોગ એ યુવાનો કરે એમના માટેની પણ એક દિશા દર્શન એથી આપ્યું છે. ત્યારે આપની અને ચંદ્રશેખરજીની વચ્ચે વધારે નહીં રહેતા એમનું પુનઃ એકવાર ગુજરાત સરકાર વતી, ગુજરાતની જનતા વતી સ્વાગત કરું છું. ગાંધીનગર નજીક ચિલોડા ખાતે સ્વચ્છતા અભિયાનનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતે આ પ્રસંગે પોતાનો સંદેશ આ રીતે આપ્યો. भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जहां भारत के विकास के लिए रात दिन एक करके इसके चहुमुखी विकास में बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया हुआ है. उनके सैकड़ों कार्यक्रम चलते हैं. उनमें स्वच्छता अभियान भी एक बहुत बड़े महत्व का कार्यक्रम है. पहली बार आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि जीवन में सफाई का कितना महत्व है. महात्मा गांधी इसी धरती से महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने बोला था कि स्वच्छता में भगवान के दर्शन होते हैं. और वो बोला करते थे कि हमारे शौचालय भी इतने साफ सुथरे होने चाहिए कि वहां बैठ करके संध्या वंदन करने का मन करे. कितनी ऊंची बात है. इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है. आज दुनिया के बहुत सारे देश अपनी स्वच्छता के कारण, साफ सुथरेपन के कारण वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. दुनिया के लोग उन देशों को देखने जाते हैं, उनका पर्यटन बढ़ता है, उनके रोजगार के साधन बढ़ते हैं, बीमारियों से मुक्ति मिलती है. हम हैं कि इस दिशा में बहुत गंभीर अब तक नहीं बन पाए. मुझे बहुत खुशी है कि आप आज के इस कार्यक्रम में जितनी बहनें बंधु बैठे हैं, बड़े जिम्मेदार आप लोग और वो लोग हैं कि जो अपने जीवन को लोक कल्याण के कार्यों में लगाते हैं. यदि हम अपने जीवन में एक कार्यक्रम पकड़ लें और उसके ऊपर पूरा फोकस करके लग जाए तो एक समाज में नई क्रांति का जन्म कर सकते. हम सब यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाएं. पर्यावरण को बचाना है, जल को बचाना है, प्रकृति की रक्षा करनी है, पेड़ पौधे लगाने हैं, स्वच्छता अभियान चलते रहना चाहिए. इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रशासन का, आप सब बंधुओं का बहुत आभार प्रकट करता हूँ. धन्यवाद. આ સાથે જ સમાચાર દર્પણનો આજનો અંક અહીં સમાપ્ત થયો. સમાચાર દર્પણ દર મંગળવારે રાત્રે 9:15 આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરાના પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ દ્વારા પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. સંકલન હિના મોદી, લેખન સંપાદન અને રજૂઆત યોગેશ પંડ્યા.